Assalamu alaikum, Yumna. Thank you so much for joining the session. Walaikum salam, Umair. Thank you for inviting for this session. It's my pleasure to have you on this session. We tried to connect before, but nevertheless, I'm happy that we are connecting right now. So there are a lot of things that I really wanted to discuss because when I was going through your profile, I see a lot of things: consultation, working for some brand, doing a very good life, एंड देन रियलिस्टिकली ठीक है यू गॉट एन आइडिया नहीं यार अपने पे करना है क्योंकि जब आप किसी बहुत अच्छे स्केल पे पहुंच जाते हैं और उसके बाद आप कहते हैं कि रिस्क लेना ही क्यों है पाकिस्तान में मेंटेलिटी ये होती है कि रिस्क लेना ही क्यों है जब सब अच्छा चल रहा है so we'll be discussing a lot of good things over on this call but just before all the things and all the pointers that we're going to be discussing I'll be happy if you can introduce yourself how's life how's everything kya chal raha hai aajkal and then we'll just start the session. Okay, so everything is good. Right now, extremely busy with our first expo, which is a Magda Worldwide Education Expo, and working here and there, and then overnight as well. Let's see how this goes. Apart from that, I am in this education and industry for last 11 years now. I started off by being a teacher. Then I became a counselor. Then that's how the journey goes. And then apart from that, I'm an international qualified student as well. I have been an international student. I went to UK for my studies. So that how it all connected. Secondly, I'm a single parent. I have two daughters at home. Oh, mashallah. And yeah, that's how the life is at the Perfect, moment. perfect. So let's start the conversation from very start ताकि हम देख सकें कि what are the thought process, what are the things when you're doing something. So uh, मुझे सबसे पहले ये बताओ कि कंसल्टेशन a lot of time in Pakistan अगर मैं कहूँ तो बहुत सारी फील्ड हैं जिसमें लोग कंटिन्यू करना चाहते हैं कि यार ये कर लेते हैं ये कर लेते हैं ये कर देते हैं ठीक है बट वाई कंसल्टेशन what make you realize कि नहीं यार this is something that I wanted to do because I personally believe this the field that you belong with it's a very responsible field ठीक है you are catering someone's emotion someone's money क्योंकि पाकिस्तान के अंदर किसी को बाहर भेजना is like सारा पैसा लगाओ और इस पे इन्वेस्ट कर दो ठीक है एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट आई एम वेरी फ्रैंक एंड आई रियली वांटेड टू डिस्कस बिकॉज पाकिस्तान में ना ये एक हमेशा से मसला रहता है कुछ लोग कहते हैं कि नहीं यार हमें कंसल्टेशन लेनी जरूरी है कुछ लोग कहते हैं हमें कंसल्टेशन लेने की जरूरत नहीं है ठीक है यू बीइंग इन द इंडस्ट्री तो मुझे ये दो चीजें बताएं व्हाई यू चूज कंसल्टेशन इंडस्ट्री फर्स्ट ऑफ ऑल हाउ इज ऑल वेंट बिकॉज यू स्टार्टेड ऑफ विद टीचिंग एंड आई सी जो टीचर होता है ना वो जिंदगी में टीचर रहता है उसका बिल्कुल सीधा सीधा होता है हमें जाना है हमें बच्चों को पढ़ाना है दे गो बैक ठीक है बहुत 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 पैसा है consultation on the other side is a very vast diverse field you meet a lot of people you have an exposure to the world you travel to the world okay so why choose this field and do you think consultation is something that everyone should require before they're moving out of Pakistan or any other way. Okay, so there is a fine line between a consultation and a Mm, career counselor. mm, Okay, कंसल्टेशन वो होती है जो बच्चा आपसे पूछता है सवाल पूछता है और बैंक का कंसल्ट लेता है mm, मैं करियर काउंसलर हूँ mm, ठीक है और मैं लोगों के करियर्स पे बात करती हूँ मैं लॉन्ग टर्म चीज़ों को देखती हूँ एक right. कंसल्टेंट होता है वो सेल्स करता है ठीक है जो एक्चुअली मैं भी करती हूँ टेक्निकली टू रन अ बिजनेस बट देन मेरे लिए सबसे पहले है करियर डेवलपमेंट और करियर काउंसलिंग Mm, क्योंकि हर किसी के लिए बाहर जाना भी बेहतर नहीं होता right. you have to find the right place and a right fit university for this person और उसके लिए आपको उसकी मेंटल हेल्थ मेंटल कैपेसिटी फाइनेंशियल कैपेसिटी उसके पेरेंट्स की फाइनेंशियल कैपेसिटी उसके साथ साथ उसके ड्रीम्स गोल्स वगैरह हर चीज़ ठीक है तो असेसमेंट का क्राइटेरिया तो पहले करियर काउंसलिंग से ही आ जाता है Mm, ठीक है बीइंग इन दिस इंडस्ट्री पहले टीचिंग से स्टार्ट की क्योंकि मैं टीचर रह चुकी हूँ ग्रेड 4 भी पढ़ाया ओ लेवल्स भी पढ़ाया ए लेवल्स भी पढ़ाया तो मुझे मिक्स एंड मैच पता था कि बच्चे कहाँ पे क्या चीज़ है और कहाँ लैग करते हैं क्या mm, चीज़ नहीं टीचिंग इज़ नॉट अ वेरी गुड फील्ड इन पाकिस्तान बिकॉज वो कहते हैं ना कि हर कोई टीचर बन जाता है डिग्री mm, के बाद जो कि एक ऑनेस्ट और बिटर ट्रुथ है
लेकिन यही चीज़ अगर आप बाहर के मुल्कों में कंपेयर करें तो वहाँ पे जब तक आप कोई टीचिंग क्वालिफाइंग डिग्रीज नहीं करते तब तक आप एक प्रॉपर सर्टिफाइड टीचर नहीं बन सकते. Up realizing to that situation, I ended up working for a consultancy firm. And then that's how I get to know more about it. And then while I was doing my case, तो मेरा केस तो डायरेक्ट मेरे कॉलेज ने प्रोसेस किया था. Hmm. So I never went to a consultant myself. I went through a career counselor who was there for a free of cost at my college because I did from Nixa. तो निक्सर में ये सर्विसेज थी तो वहीं से हमें आइडिया था कि हाँ ठीक है कोई करियर काउंसलर होता है जो हमारी हमारी पर्सनालिटी के हिसाब से हमें कोर्स गाइड कर देता है और वो बता देता है कि यहाँ जाना है ये करना है वो करना है. बाय द वे फ्रॉम द प्रोफेशन आई एम LLB graduate and my family wanted me to continue barred law and become Okay. a barrister. बट देन मुझे ये रियलाइज हो गया था थर्ड ईयर में कि मुझे LLB नहीं करना. मुझे अपनी जिंदगी ब्लैक एंड व्हाइट नहीं चाहिए. ठीक Fair है. enough. तो आपने आपने सोचा कि वैसे ही इतने सारे केसेस हैं, और कितने केसेस मैं सॉर्ट आउट करूंगी सर, लेट्स डू समथिंग एल्स. तो हमने कहा कि ठीक है चलो इस LLB की डिग्री को जो है ना वो हम ट्विस्ट कर देते हैं. हम उसको बिजनेस के साथ साथ उसको करियर काउंसलिंग के साथ ट्विस्ट करते हैं. और फिर उसके बाद जो हमने इस दोनों चीज़ों को मिक्स एंड मैच किया तो हमारा ये करियर मूव हो गया. So I work for a very well known brand जो कि पिछले 23 सालों से इस इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं. They have a very good credibility. They have very good standings and the director of that company is a very humble man, very nice person to work with. And मुझे पता था कि मुझे इधर ही सीखना है जो काम सीखना है. तो मैंने इधर उधर इतनी कंसल्टेशन में 2-3 वो होती है ना जैसे आप शुरू के इंटर्नशिप्स कर लेते हैं 4-6 महीना देख लेते हैं माहौल को उसके बाद आपको पता लग जाता है कि कौन सी सही है कौन सी नहीं क्योंकि जहाँ पे एजेंट और कंसल्टेंट का नाम आता है वहां पे पहला स्टूडेंट के पास नेगेटिव इम्पैक्ट जाता है. ठीक है क्योंकि उनको एक क्रेडिबल आदमी चाहिए या क्रेडिबल काउंसलर चाहिए जो उनका केस प्रोसेस कर सके. तो अगर आप एक अच्छी कंपनी के साथ एसोसिएटेड हैं तो चीज़ें बेहतर हो सकती हैं. ठीक है. देन at the age of 2021 I guess I worked for this firm. I started working for this firm at a very lower level, beginner level. And then I remember within a month I got the confirmation salary increment. And because I started booking the students and I found out that I have a skills for sale as well. ठीक है. तो मेरा जो मेन कनेक्शन पॉइंट है वो है करियर काउंसलिंग. आप स्टूडेंट के शूज में जाके अंडरस्टैंड करें उसकी फैमिली के अंडरस्टैंड करें कि वो क्या चाहते हैं टेक्निकली. क्या वो वाकई में चाह रहे हैं कि उनका बच्चा किसी जगह सेटल डाउन हो या वहां जाके पासपोर्ट फाड़ के बैठ जाए. You have to also make sure that you are sending the right person. You are not going to cause a problem to another country. Fair enough. ठीक है क्योंकि यहाँ की तो जिम्मेदारी होती है काउंसलर के ऊपर लेकिन वहाँ की भी जिम्मेदारी कंट्री की जो पॉलिसीज आप पे ट्रस्ट करते हैं जो इमिग्रेशन आप पे ट्रस्ट करती है उसकी भी जिम्मेदारी आपके ऊपर आ जाती है. सो दैट्स हाउ इट ऑल स्टार्टेड. अब आफ्टर सर्विंग गुड टाइम स्पैन इन दिस कंपनी of course there have been some personal arrangements that I had to look into and they were related to my personal life where this idea actually came into the thing कि अब ये जो है वो करना है तो अपने लिए करना है. Because I was very much one thing I know that if I'll work either for this company for the rest of my life or else I will start everything from my scratch and that would be the last struggle that I'll go through. And then that's how Admentors was being born. Perfect. I think uh, जब आप throughout what I see is throughout your experience is not के बहुत सारे लोगों के पास आइडिया होता है कि आई वांटेड टू स्टार्ट समथिंग क्योंकि एंटरप्रेन्योरशिप स्टार्ट विद एन आइडिया कि ठीक है मुझे करना है बट you doing something for last 6 years, you know the industry very well. You don't jump into some industry just to be like यार दिल चाह रहा है कर लेता है. ठीक है. You started off with very early age. You got to know everything. ठीक है. At that point before I move to and discuss about the
Edmonton's thing. I also wanted to know that you invested almost like 6.5 years in the consultation firm that you were in. Almost 8 years, 8 years Almost in it. the consultancy, Almost. and then rest of the 3 years in teaching, schooling, and then I was also in UK, and then worked for So part-time it's job. more likely average कर लें तो 7 to 8 years you were in the Yeah. same company. ठीक है. अब मुझे थोड़ा सा ये बताओ कि राइट नाउ यू आर रनिंग और योर ओन बिजनेस, बट लोगों को ना कभी कभार ये लगता है कि लोगों के लिए ना हमेशा पाकिस्तान में वर्टिकल ग्रोथ होती है कि यार इस कंपनी में जाएंगे, 6-8 महीने साल काम करेंगे, शिफ्ट करेंगे दूसरी कंपनी में, फिर करेंगे शिफ्ट करेंगे तीसरी कंपनी में। ठीक है, मुझे ये बताओ कि थ्रू आउट योर ओवरऑल एक्सपीरियंस, 6-8 साल के एक्सपीरियंस में आपने हॉरिजॉन्टल ग्रोथ देखी है? बिकॉज ग्रोथ सिर्फ ये नहीं होती कि मेरे पैसे बढ़ रहे हैं, पैसे तो आपके हर साल बढ़ ही रहे हैं, ठीक है। आपको ये भी देखना होता है कि यार हाउ बेटर आई एम बिकमिंग, मतलब पिछले साल में ये थी, अगले साल में क्या हूँ, ठीक है। So what do you think about horizontal growth? Do you think switching to multiple places give you much better experience, या being in the industry ये भी एक क्योंकि पार्ट है? क्योंकि अगर मैं हमसे थोड़े पहले की बात करूं, अगर हमारे मॉम एंड डैड की बात करूं, बिकॉज वी बोथ आर फ्रॉम द सेम एज, सो वहां पे हम ये देखते थे एक बंदे ने जॉब करी एंड ही रिटायर्ड 15-20 साल की सर्विस करने के बाद। अब हम ये नहीं देख रहे। तो डू यू थिंक कंसल्टेशन साइट पे या इस फील्ड के अंदर ऐसा है, या आपने इसमें जो चीज करी, क्या प्रोज एंड कॉन्स आपको लगता है? देखें, आई कैन टॉक मच बेटर अबाउट दिस इंडस्ट्री। अगर हम बैंकिंग में बात करें तो बैंकर्स तो आए दिन चेंज होते रहते हैं, हम्म। वर्टिकल ग्रोथ ढूंढते हैं। हम्म। कोई पीएनजी में काम कर रहा है तो वो यूनिलीवर को देख रहा होगा बेटर हम्म। पे स्केल पे। अगर कोई आईटी फॉर्म में काम कर रहा है तो वो फिर एक टर्म टर्म 6 8 10 या 1 साल के बाद उसको फिर से चेंज करना है, कोई टीम लीडर बन जाएगा कहीं जाके। वो हमारी इंडस्ट्री के डायनेमिक्स बड़ी डिफरेंट होते हैं। वी अगर एक अच्छा काउंसलर कोई है, ठीक है, तो वो फेस ऑफ द कंपनी बन जाता है। ठीक है, क्योंकि लोग आते हैं कि भाई हमें इस काउंसलर से काम करवाना है, हम्म। ठीक है, या हमें इस काउंसलर के साथ आगे बढ़ना है, ठीक है, हम्म। या उस काउंसलर के इतने रेफरेंसेस बनना स्टार्ट हो जाते हैं, बिकॉज इफ यू सेंड वन स्टूडेंट अब्रॉड, दैट स्टूडेंट विल सेंड 10 मोर स्टूडेंट्स टू यू। ओके, तो इसलिए हमारी इंडस्ट्री में हॉरिजॉन्टल ग्रोथ इज मच बेटर। जो लोग वर्टिकल ग्रोथ में जाते हैं वो बहुत जल्दी इंडस्ट्री से आउट भी हमने देखा है होते हुए। ठीक हम्म। है, क्योंकि आपका माइंड हर किसी के साथ भी नहीं मैच करता। मुझे लगता है कि आपकी वर्क केमिस्ट्री मैच करनी चाहिए। हम्म। अगर किसी की वर्क केमिस्ट्री नहीं है, आपकी जो है वर्टिकल, आज 6 महीने बाद आप आज इस यूनिवर्सिटी में रैप बन गए, कल उस कंपनी में ब्रांच मैनेजर बन गए, कल उसमें वो उसमें आपकी 50-50 हज़ार रुपए की शायद सैलरी इंक्रीज हो रही होगी, हम्म। लेकिन आपका ब्रांड नहीं बन पाएगा। आपको अपना एज अ काउंसलर ब्रांड बनाना है ताकि लोग आपको इंडोर्स करें, और वो जो कंपनी जिसके लिए आप हॉरिजॉन्टली ग्रोथ ले रहे हैं या काम कर रहे हैं, वो कंपनी आपकी बैक होती है उस ब्रांड की। ठीक है, तो मैंने हमारी इंडस्ट्री में ये नहीं होता कि हमें एक्स वाई जी कंपनी से काम करना है या उससे करना है। दे ऑल फाइंड आउट कि हु इज द बेस्ट काउंसलर इन द इंडस्ट्री। फेयर इनफ, क्योंकि आई थिंक इट आपकी फील्ड के अंदर ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप लोग की पर्सनल ब्रांड भी होना चाहिए। यस। ठीक है, क्योंकि व्हाट आई सी इज के जितना रेफरल आप लोग की इंडस्ट्री के अंदर है ना, उतना कहीं नहीं होता। बिकॉज इट्स मोर लाइकली इफ यू डू सम केस फॉर सम पर्सन, फिर उसकी पूरी फैमिली आप ही से कराएगी। पूरी ठीक है, फैमिली कहीं वो नहीं जाएगी, वो कुछ कहीं भी। नहीं जाएंगे, क्योंकि क्योंकि टू बी वेरी ऑनेस्ट, पाकिस्तान में ना दो बड़े मेन रीजन है जिसकी वजह से मुझे लगता है कंसल्टेशन या कैरियर काउंसलर की बहुत जरूरत होती है। एक तो वीजा हर 6 महीने में चेंज हो रहा है, 6 महीने की आप प्रैक्टिस करते हैं कि यार ये चीज चाहिए, वो चीज आप जमा करते हैं, पता चलता है कि फिर रूल चेंज हो गया और ये ऐसा आ गया। ठीक है। साउथ एशिया मार्केट के लिए इस पर बहुत जल्दी रैपिड पॉलिसीज चेंज हो रही हैं, क्योंकि हम्म। बिकॉज द रीजन बिहाइंड, इफ यू टॉक अबाउट ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया कीप ऑन चेंजिंग, यूके हैज जस्ट लॉन्च its white paper, and then because South Asians is the most you know dramatic kind of a market कि बाकी कंट्रीज भी परेशान है हमें लेकर। तो एनी हाउ वो जो पॉलिसीज चेंज होती हैं, जो आपकी लास्ट मिनट चीजें होती हैं, उसमें जरूर करियर काउंसलर इज मच इम्पोर्टेंट।
कंसल्टेंट देखें, जो कंसल्टेंट होता है वो सिर्फ एक दफा कंसल्टेशन देता है, एक दफा बता देता है, एक दफा फेस कर देगा, लेकिन जो करियर काउंसलर होता है ना, वो बिल्ड करता है आपके करियर को, फेयर वो इनफ। स्टार्ट से लेके चलता है। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि इट्स आई थिंक it's a responsible job. It's not ke just to make a sale. It's to understand ke people are seeing you as a mentor. People are seeing you as a guide because they are trusting you. के for example, पैसा is a byproduct. I personally believe. लेकिन आपको Well, ये भी देखना होता है कि यार आप जिस बच्चे को बाहर बेच रहे हैं उसमें आपको ये नहीं देखना कि वो जो अभी आपने बात कही थी कि नॉट ओनली कि हमें सिर्फ उसका देखना है, हमें ये भी देखना है कि वी नीड टू सेव अस एज वेल बिकॉज यू आर डायरेक्टली कनेक्टेड टू द यूनिवर्सिटीज एंड द गवर्नमेंट आउटसाइड पाकिस्तान एंड इट्स नॉट लाइक कि किसी एक बच्चे की वजह से आपका अपना बिजनेस भी खराब हो सकता है क्योंकि आपने हर साल उसको रिटेनर बेस पे रखना है सो it's a very important thing. The next thing that I wanted to discuss, it will be a very dramatical topic that is 6-7 साल लगाए 6-7 फिगर्स की सैलरी डूइंग गुड इन योर लाइफ ठीक है क्या 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 सोच के आपने बोला कि नहीं नाउ आई वांटेड टू स्टार्ट एडमेंटोर बिकॉज नाउ आई वांटेड टू डिस्कस बिकॉज यू आर नॉट दैट के आई वांटेड टू स्टार्ट समथिंग बिकॉज नॉट एवरीवन थिंग यहाँ होता है आपका एक लॉन्गर टर्म प्लान होता है करना है बट सम टाइम एट सम मोमेंट यू रियलाइज कि नहीं यार अब ये बहुत है आई नीड टू समथिंग ऑन माई ओन and now you are doing a very tremendous job mashallah your expo is coming for the education expo is coming all the best for that but at what stage you realize कि ठीक है भाई अब मैं 9 to 5 नहीं करनी I wanted to do something on my अच्छा, own मैं पहले भी 9 to 5 नहीं कर रही थी। मतलब मैं पहले भी लेट तक बैठ के मतलब काम I करती थी। assume I assume 9 to 5 as in के देखिए working for someone ठीक या है एंड वर्किंग फॉर योर सेल्फ इट्स अ वेरी डिफरेंट थिंग ठीक है आई पर्सनली बिलीव कि जो सबसे अच्छा पर्क होता है किसी और के लिए काम करने का वो ये होता है every 30 you got a message done and you will your salary will be debited ठीक है your commission will be debited ठीक है बट when you are working for yourself you need to realize कि मुझे काम करना है ताकि मेरे नीचे की जो नीचे जितनी बड़ी टीम है उनको सैलरीज टाइम पे मिल सके सो how's the overall process what's the idea behind it और थोड़ा सा मुझे बताओ कि starting your own thing in Pakistan how easy or hard it is. So basically, I had a very settled job, and it was a nice one where I have been, you know, going on a good speed with good numbers, with everything. Everything was settled. But then there have been some personal settlements, personal things that I had to prioritize over such a career, over such a settled career, actually. Mm, Okay. Where I thought of that personal thing is more important and it's a priority, where I have to leave this settled job and start from scratch, leaving my credibility, leaving everything far behind, facing a lot of challenges that even if I start telling you that it will take long mm, hour of session. But yes, it was not easy step. It took me one entire year to make a decision that whether this personal priority is important or this settled career is important. mm, And when I just one day it all happened when I started thinking that no, I think to settle down personally is a priority at the moment rather than going ahead with this six-figure salary. And apart from that, I had no idea or clue that today I'll be standing over here facing all the challenges and going in a good pace for ed mentors. And I just took the step. I mm, just took the step. I'll be like, okay, कोई बात नहीं, देखा जाएगा जो होगा, या तो डूबेंगे या तो चल mm, जाएंगे। mm, ठीक है। और फिर उसके बाद जब ये जर्नी स्टार्ट हुई तो इसमें बहुत से चैलेंजेस मुझे मिले। हर कदम पे चैलेंज मिला, बीइंग अ वुमन एज वेल, बीइंग अ एंटरप्रेन्योर एज वेल, ऑन पर्सनल ग्राउंड्स एज वेल। बट देन व्हाट आई नो इज दैट कि ये एक लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी थी जो इसको इसी तरह से आनी थी। mm. Fair enough. क्योंकि अल्लाह ताला भी आपको चूज करता है सीट पे बिठाने के लिए। बिल्कुल There are many people who wants to become an entrepreneur, but they don't get that kick to start. fair And enough I fair enough got that kick and that that feeling कि नहीं यार जो होगा देखा जाएगा, इसको बस स्टार्ट करना है।
इसको इस पॉइंट से स्टार्ट करना है, आगे बढ़ना है, सेटल डाउन होना है, और मुझे जो है वो किसी और के लिए काम नहीं करना था, क्योंकि फेयर इनफ। मैंने अपनी इस एज में ये सीख लिया था कि आप जब एक एक किसी के लिए काम करते हैं तो ऑब्वियसली आप उसी के लिए इन दी एंड काम करते हैं, नो मैटर कि आप कितने साल लगा लो, कितना टाइम लगा लो, कितने इमोशंस लगा लो, the moment that company or the moment that boss wants to change you, they will replace you. ठीक है? फेयर तो इनफ। अब उतनी स्ट्रगल और इतनी मेहनत करनी हुआ है तो वो अपने लिए इंसान कर ले, जो आप किसी और के ड्रीम्स को बनाने के लिए करें। और दूसरी चीज ये कि अल्लाह ताला ने अगर आपको यहाँ पे पोजीशन पे बिठाया है ना, तो मेरा एक बिलीव है कि अल्लाह ताला ही आपको हिम्मत देता है इतने सारे लोगों के वो संभालने की। Fair enough. क्योंकि it's a very big responsibility. What I personally believe कि it started off with an idea. Every entrepreneur, every startup start off with an idea कि I want to do this. But then you realize कि you are doing everything right because Allah Ta'ala wants you to be on certain level, because then you need to work hard so the rest of the team can अल्लाह get ताला paid. आपको मुश्किल तभी देता है जब वो आपकी ज़िंदगी को किसी और पॉइंट पे ले जाना चाहता है। Fair enough. बिल्कुल वरना बिल्कुल ये ठीक बात। बहुत सारे लोग हैं, मेरी अपनी फैमिलीज़ में हैं, जो पता नहीं जिनकी पहली जॉब और आखिरी जॉब ही वही थी। हम्म, ना उन्होंने दुनिया में कुछ देखा, ना उन्होंने दुनिया में कुछ किया। सुबह 8 बजे उठे और शाम के 7 बजे घर आ गए। बिल्कुल ठीक लेकिन बात है। मेरे ख्याल लेकिन से जब टाइम एक्सपोजर बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। बिकॉज समटाइम्स वो वाली पॉइंट होता है ना कि इफ यू नीड टू रीच टू सम सर्टेन लेवल, आपको कहीं ना कहीं से निकलना पड़ता है, आपको अपने कंफर्ट जोन को छोड़ना पड़ता है, आपको कुछ हार्ड स्टेप्स लेने पड़ते हैं दैट विल गिव यू अ क्राइटेरिया ऑफ रीचिंग टू अ सस्टेनेबल लेवल। आपको उन हार्ड स्टेप्स में आप बहुत सारे रिश्ते भी खो देते हैं। You leave a lot of people behind when you are climbing those stairs, and you know, and then of course आपको एक पॉइंट पे आके वो चीज, आपको कंफर्ट जोन छोड़ना होगा। अगर आपको जिंदगी में कुछ करना है तो आपको अपने सारे लेजीनेस, कंफर्ट जोन्स, अपने इश्यूज, अपने एक्सक्यूजेस सबको साइड करना पड़ेगा और आपको फेस करना पड़ेगा। और इन सारे चैलेंजेस के बाद अगर आप बच गए मेंटली, इमोशनली, फाइनेंशियली, तो फिर यू विल बी इन अ विन विन सिचुएशन। Fair enough. Moving forward, the next thing that I wanted to discuss कि I I don't feel shame or saying this on record is कि Pakistan and specifically Karachi is a very male dominant society. Okay. And we see a lot of females and women who are now growing and starting up with businesses and all. Okay. But tell me the reality, working women in Pakistan, ठीक है, what sort of thought process, what sort of an ideation, क्या मसले मसाइल ऐसे होते हैं जो आपको फेस करने पड़ते हैं? Because some what I believe is कि people will judge you कि यार ठीक है, आप अच्छे सीईओज हैं और आप अच्छे एमडी हैं, बट वो गैप क्यों है? मुझे ऐसा लगता है कि ये रूल नहीं होना चाहिए कि 50-50% लोग हो, 50% औरतें होनी चाहिए, 50% मर्द। अगर 30% औरतें आपके 50% मर्दों का काम कर सकती हैं, वी शुड वी शुड गिव देम दैट रिस्पेक्ट, ठीक है। आई पर्सनली बिलीव के बैलेंस इन लाइफ या रियलिटी ये होनी चाहिए कि अगर यमुना दो लोगों का काम कर सकती हैं तो उन दो मर्दों की जगह यमुना को रखा जाए, ठीक है। यमुना जहां पर है वो अपनी कैपेबिलिटी की वजह से है, वो अपने फोकस की वजह से है, ठीक है, वो अपने वर्क एथिक्स की वजह से, ठीक है। उस तरीके से मेजरमेंट होनी चाहिए। डू यू थिंक वर्किंग वुमेन इन पाकिस्तान do feel some up and down? Any tips and tricks? Because now you are in the industry for a couple of years. अपना स्टार्टअप की भी couple of years, आपको 2 डेढ़ 2 साल स्टार्टअप को हो गए, बट यू आर इन द इंडस्ट्री फॉर ऑलमोस्ट लाइक अ डेकेड नाउ। It's 1 year now. No, okay, it's 1 year for Adminter, but Overall, it's 11 years. overall it's been Okay. more than a decade, ठीक है। Yeah. So it's not right कि so I personally believe कि आप एडमेंटर 11 साल का हो, क्योंकि 10 साल का एक्सपीरियंस भी है आपको। So it's not like you only have one years of experience. So वो Yeah. जो एक पूरा 10 साल का एक्सपीरियंस है, इसमें आपने चीजें देखी हैं, आपको क्या लगता है कोई ऐसी टिप एंड ट्रिक आप बताना चाहोगे कि यार औरतों मैंने को ये चीजें अपनी बतानी करनी चाहिए ताकि वो लॉन्गर टर्म में उनको हेल्प आउट करें? मैंने इन 10 सालों में बीइंग अ वर्किंग वुमन काफ़ी हद तक चीज़ें फेस की हैं।
और द आई माई फैमिली वॉज नेवर इन टू द फेवर दैट आई शुड बी वर्किंग और गोइंग टू द ऑफिस। हमारे घर का माहौल नहीं है ये, ठीक है। मेरी मेरी अभी भी कजन्स हैं जो कि जॉब्स नहीं करती, डिग्रीज हैं सारी हैं, लेकिन दे गेट मैरिड एंड दे आर लाइक नाउ टेकिंग केयर ऑफ द बेबीज एंड यू नो देयर हस्बैंड एंड ऑल दैट। I have always been a standout personality, even in the family as well. एंड मुझे लगता है कि जो मेरा एक्सपीरियंस है वो बहुत ज़्यादा हमें प्रॉब्लम्स भी फेस होती हैं। वुमेन, एक तो वुमेनाइजिंग भी बहुत होती है कंपनीज में, ठीक है। आपको गलत लोग भी मिलते हैं, आपको स्ट्रेस भी मिल रहा होता है, आपको समटाइम्स मेल ज़्यादा प्रेफर हो रहे होते हैं ट्रैवलिंग के लिए एज कम्पेयर टू वुमेन, ठीक है। फिर उसके बाद आपके फैमिली इश्यूज भी आ जाते हैं। समटाइम हस्बैंड्स डोंट वांट यू टू वर्क एज वेल, समटाइम फादर्स डोंट वांट यू टू वर्क एज वेल, राइट। तो मुझे लगता है कि एज अ वुमेन हमें हमें अगर इस चीज को आगे लेके चलना है या आगे बढ़ना है, प्रोफेशनली चलना है, तो हमें सबसे पहले तो खानदान वालों से बातें सुननी पड़ती हैं। फिर जॉब पे भी हजार मसले मसाइल झेलने पड़ते हैं। फिर उसके बाद उगलिंग है, सारी चीजें आ जाती हैं। लेकिन इसका सबसे ज्यादा तरीकेकार ये कि एक तो स्ट्रांग बन के आप चलें। एक दफा आप घर से बाहर निकल गए तो दैट मीन्स कि आपने फिर खुद फेस करना है। यू कांट कॉल योर मम्मी एट द डे ऑन द ऑफिस एंड देन टेल हर कि ये हो गया, या यू कैन नॉट टेल दैट मेरे डैड का ये है वो है तो ये करना है। नो, your dad, mom, father, brother, or whoever is the strong person in your family, they should be at your home only. और आपको अपनी पर्सनालिटी इतनी खुद से डेवलप करनी है कि अगला बंदा आपसे बात करते हुए 2 मिनट सोचे कि वो बात क्या कर रहा है। और कहीं पे भी आपको लगे कि someone is telling you the wrong thing or someone is you know what I'm trying to say, कि आपको गलत तरीके से बात करने की कोशिश करे, just give them a shut up call right away. Don't worry about whatever is going to happen next, but you need to shut them up over there. दूसरी चीज ये कि हमारी कुछ खवातीन हैं जो बुर्का भी पहनती हैं, जो ऑर्थोडॉक्स फैमिली से भी होती हैं। चीज मुझे लगता है फाइनेंशियल इंडिपेंडेंसी औरत के लिए बहुत जरूरी होती है, चाहे कुछ भी हो। बेशक आपके हस्बैंड्स, आपके फादर्स की मिल्स हो, फैक्ट्रीज हो, वट एवर, but you have to make sure that you have that ability to make yourself powerful enough to earn a bread and a butter, that if someone is not there at your home, you are there to survive, make a survival for your own and for your children. और जाहिर बात है पाकिस्तान में रहते हुए ये बहुत मुश्किल है, ये बहुत मुश्किल है। इसके लिए आपको, इसके लिए एक बड़ा ही तल्ख अल्फाज तो होंगे, इसके लिए आपको बहुत ही बोल्ड किस्म की औरत बनना पड़ता है कि आप हर तरह के मर्दों को भी फेस करें, हर तरह की गवर्नमेंटल अथॉरिटीज को भी फेस करें। आपको ये नहीं कहा जा रहा कि आप छुट्टी बदतमीजी पे आ जाएं, लेकिन आप अपने पॉइंट्स और अपनी चीजों को इतना वैलिड रखें कि अगला बंदा आपसे बात करते हुए आपको पहले पढ़ के आए कि आपसे क्या बात करनी है। Fair ऐसे enough. ही उठा You के need ना, to be, I think you need to be outspoken to understand care when and what to say. In Pakistan, a lot of times, जो अभी आपने चीजें बताई हैं, the main reason of discussing this point is because it's not about कि ये जरूरी है, ठीक है। अ लॉट ऑफ टाइम पीपल थिंक यार इकोनॉमिकल फैक्टर है, अब दो लोगों को कमाना पड़ेगा और फैमिली एक बंदे के कमाने से नहीं चलती। इट्स अ वेरी डिफरेंट थिंग। आई पर्सनली बिलीव कि इन द सोसाइटी अ लॉट ऑफ टाइम लोग, लड़कियों को या औरतों को ये लगता है कि यार नहीं, उनको सिर्फ घर का काम करना है, ठीक है। We should respect that point कि there are people, and I really respect that being a single mother, you are working for yourself, and then you are also taking out time, and then उनको उनकी तरबियत देनी है और उनको उन बच्चों को भी ख्याल रखना है। इट्स अ वेरी वेरी बिग थिंग। मतलब मुझे कभी कभार लगता है कि 24 घंटे कम होते हैं ये इन सब बहुत करने के। आपको आपको ये भी मैनेज करना है कि यार मेरी वजह से दूसरों के घर का मसला ना हो, और फिर मुझे टाइम निकाल के इनको भी मैनेज करना और इन सब चीजों को भी रखना है। सो आई थिंक पर्सनल इंडिपेंडेंसी बहुत इंपॉर्टेंट है कि भाई आई कैन डू समथिंग ऑन माई ओन, दिस इज माई मनी, आई वॉन्टेड टू डू समथिंग। और आपको ये पता होना चाहिए क्योंकि पाकिस्तान के अंदर इट्स नॉट ओनली अबाउट, आई डोंट से कि यार सिर्फ बुरे लोग हैं, ठीक है। बट आपको उन चीजों के लिए ना पहले से प्री प्री तैयार होना चाहिए कि अगर ऐसा कुछ होता है तो आई एम केपेबल इनफ दैट आई कैन से और आई कैन सेट अ बाउंड्री आउट ऑफ इट। सो दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग दैट यू हैव सेट के
Moving forward, your expo is coming. Tell me how was the overall experience till the far? क्या idea आया कि भाई किस तरीके से expo करना चाहिए when it's happening, and how's the overall thing going around? So it's on 1st November Oh, 2025, will be Saturday go. hmm, Actually, द थिंग इज दैट कि हमें अपनी कंपनी का एक लॉन्च तो करना ही था, hmm, ठीक है। अब हमने ये सोचा कि या तो हम लोगों को बुलाएं, खाना खिलाएं, लॉन्च करें। फिर हमने कहा नहीं, व्हाई नॉट टू गो विद द बिजनेस साइड, लेट्स डू दिस मेगा वर्ल्ड वाइड एजुकेशन एक्सपो। और उसमें जो है वो एक तरह का लॉन्च भी हो जाएगा, पब्लिक विल ऑल्सो गेट टू नो। हाउ हम ये थोड़ा सा लेट कर रहे हैं क्योंकि आई वॉज विलिंग टू वेट फॉर माई वन इनटेक टू पास and see how the response comes in when you actually leave a good company and start your own. hmm, Does people come to you, or they were there to be there with that company? But that's not actually the case. People want, if they like you, they respect you, they understand your credibility, they will come to you. Okay, and then that's how this idea came into कि नहीं, अब this is the right time, because the intake is already on head for January, and then Feb, and then March, and then other intakes for 2026. So this is the right time where we should be doing all the international education expo, and bringing all the international universities under one roof, so that students and parents have an idea that there is an Adventures who is providing the career counseling and sending and building the careers for the students. We are fair. not consultants, we are careers Fair. counselors. So all the best for that. I think ये तो बस आपका this coming this week is going to be very hell of a work, but I'm pretty much sure it will be a very big success. And thank you so much for doing that, because we need these type of event. It's not about only thinking about the business, also to getting the ideas. जैसे आपने बोला कि यार, you waited for the right time to endorse things, because it's important in Pakistan and Karachi when you market and what you market at what time. Moving forward, the last thing that I wanted to discuss is everything connected. अगर आपका प्रोफेशन की बात की जाए, आपका स्टार्टअप की बात की जाए, आपके एक्सपो की बात की जाए, इस सब की बैकबोन एक ही चीज़ है, वो है पर्सनल ब्रांडिंग। और वो Yes. आपके फील्ड के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट है। um, क्योंकि एक मर्तबा you give career counseling to one person in the family, the whole family is your client, ठीक है। एंड इट्स लाइक आई थिंक ये वो वाहिद प्रोफेशन है जिसके अंदर आप मार्केटिंग नहीं करते हो। यू Low यू हाँ, marketing. इट्स बेसिकली आपने जाके सिर्फ एक बीज बोना है और उससे वो चीजें खुद चेन रिएक्शन में निकलती हैं। सो टेल मी व्हाट डू यू थिंक पर्सनल ब्रांडिंग कितनी इंपॉर्टेंट है, नॉट ओनली इन योर फील्ड बट ओवरऑल, बिकॉज व्हाट आई पर्सनली बिलीव कि एडमेंट जब जब एक वेल नोन पर्सन जिसको लोग जानते हैं इंडस्ट्री के अंदर, वो कोई नई भी चीज स्टार्ट करता है ना, तो लोग उसके नाम पे वाउच करते हैं उसको। एंड दैट बिकम्स अ पाथवे कि ओके फाइन, यमुना फहद को सब जानते हैं, यमुना फहद की वजह से एडमेंटर को लोग जानेंगे, एंड वाइस वर्सा दिस साइकिल विल स्टार्ट, एंड देन पीपल स्टार्ट नोइंग ओके एडमेंटर यमुना फहद, ओके फाइन, दैट्स मेक द रिएक्शन। क्योंकि पाकिस्तान के अंदर ना वो आपको कनेक्शन जरूर पैदा करना पड़ता है, क्योंकि लोगों को ब्रांड के नाम याद हो ना हो, लोगों को ये पता होता है उस बंदे से काम करना है, उस बंदे के लिए काम करना है, क्योंकि हमारी फील्ड में भी है, ठीक है। व्हेन वी आर वर्किंग फॉर प्रोडक्शन इट्स नॉट लाइक, क्योंकि सबको पता है काम तो सभी कर रहे हैं, लोगों को रिलायबिलिटी चाहिए, ठीक है। एंड पर्सनल ब्रांडिंग इज इंपॉर्टेंट। सो व्हाट डू यू थिंक, व्हाट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग व्हेन इट कम्स टू पर्सनल ब्रांडिंग? हाउ डू यू सी पर्सनल ब्रांडिंग इटसेल्फ, एंड व्हाट आर द की पॉइंटर्स दैट यू थिंक कि लोगों को ये चीजें करनी चाहिए, वेदर इट्स दे आर फ्रॉम योर फील्ड और एनी अदर फील्ड? सो आई थिंक पर जो हमारी इंडस्ट्री है, इफ आई टॉक अबाउट दैट फर्स्ट, हमारी इंडस्ट्री में हम लोग शैम्पू की बोतल तो नहीं बेच रहे। Hmm. So we are selling, or we are discussing a product जो कि actually intangible है, Hmm. जो कि दिख भी नहीं रही। जब तक हाथ में बच्चे का वीज़ा आएगा, स्टूडेंट का वीज़ा आएगा, वो जाएगा उस यूनिवर्सिटी को अपनी आंखों से देखेगा, तब जाके उसको यकीन आएगा कि हाँ है, ये एग्जिस्ट करता है। तो पर्सनल ब्रांडिंग बहुत ज़रूरी होती है, बिकॉज if you are not going to tell who you are, what is your experience, and how many people you have sent abroad, how many successful stories you have, आपका एक्सपोजर क्या है, आप किस फैमिली से बिलोंग करते हो, आपका
वे ऑफ स्टाइल क्या है, लिविंग स्टैंडर्ड क्या है, क्या नहीं, क्योंकि यहाँ हम जो बिजनेस कर रहे हैं वो मिलियन डॉलर्स का कर रहे हैं। स्टूडेंट यहाँ डॉलर्स पाउंड्स में फीसेस पे कर रहा है, ठीक है। तो वो जाहिर बात है, एक राह चलते आदमी या औरत से तो बात नहीं करेगा। हम्म। वो तो पहले एक सर्च आउट करके आएगा कि कहाँ जा रहा है, किससे बात कर रहा है, कोई स्कैम तो नहीं है, कोई गलत तो नहीं है, कोई गलत गलत इंसान के हाथ में तो नहीं लग गए। ऑफ कोर्स आई आई डोंट से कि गलतियां नहीं होती, गलतियां होती हैं, हर इंसान से होती हैं, हर फील्ड में होती हैं, ठीक है। समटाइम्स डिलेज भी हो जाते हैं, बहुत सारे मसले आते रहते हैं, लेकिन उसको टैकल करना भी आना चाहिए, ठीक है। अब ज़ाहिर-सी बात है, पर्सनल ब्रांडिंग जब होती है ना, वो पर्सनल ब्रांडिंग आपको इंडोर्स करती है, आपके काम को, आपकी चीज़ों को, आपके लाइफ़स्टाइल को, जिससे लोग आपको देख के एडमायर होते हैं और वो आपकी बात सुनना चाहते हैं। नसीहत देने के लिए तो बहुत लोग बैठे हैं, वो तो हमारे घर में ही बहुत सारे बैठे हुए हैं। लेकिन अगर आप किसी से बात कर रहे हैं, किसी को इतना टाइम दे रहे हैं, तो एटलीस्ट आपके पास इतनी एंडोर्समेंट और इतनी क्रेडिबिलिटी होनी चाहिए पर्सनल ब्रांडिंग के थ्रू कि हम्म। आपको लोग सीरियस लें। अगर आप मेरा लिंक्डइन या मेरा इंस्टाग्राम जाके देखें, इट्स ऑल पब्लिक। आई शेयर ऑल ऑफ माई लाइफ स्टाइल विद द पीपल। Students follow me. They approach me through Instagrams. They walk into my office through that. They are the potential ones. ठीक है। वो जानते हैं कि भाई ये काउंसलर है, या आज यूके की यूनिवर्सिटी में खड़ी हुई है, या ऑस्ट्रेलिया की यूनिवर्सिटी में खड़ी हुई है, तो इसने जाके देखा है, इसका ये हम्म। एक्सपीरियंस है, ठीक है। और मैं मेक श्योर करती हूँ कि मैं एक्चुअली जाके खुद भी इस चीज़ को एक्सपीरियंस करूँ, क्योंकि आई रिप्रेजेंट मेनी ऑफ द यूनिवर्सिटीज विच आर बेस्ड इन यूके, यूएस, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, मलेशिया, दुबई एंड ऑलमोस्ट यूरोप एज वेल। तो खुद जाके जब आप देखेंगे, एक्सपीरियंस जानेंगे, अपनी चीज़ों को ब्रांड करेंगे, तो ही लोग आएंगे ना आपके पास। क्योंकि हमारे मुल्क का मामला ये है कि एक बंदा बाहर मुल्क से होकर आए ना, तो वो उससे पूछेंगे कि वहाँ था क्या, सही था, नहीं था। And I think it makes sense in your career pathway because, for example, I think networking का main reason भी यही होता है। जैसे यस, for example, कल कल को you call me and you are ask यार उमर, मैंने यूएई में ये चीज सुनी, confirm me that. This is how we do that. अगर मुझे कल को यूके में कोई एजुकेशन की चीज मालूम करनी और someone is going, I'll call you, यमुना please tell me यार ये वाली चीज है। This is how connection building works. This is how reality works. Because पाकिस्तान में तो I think पाकिस्तान में तो इतना मसला है कि पाकिस्तान में लोग पत्थर को भी पत्थर नहीं मानते, तो सोने को पत्थर तो मानने के लिए बहुत टाइम लगता है उनको। राइट। सही है, क्योंकि दे यूजली व्हेन इट कम्स टू, एंड आई डोंट सी इट्स ओनली ट्रस्ट, बिकॉज एजुकेशन इटसेल्फ इज हेल लॉट ऑफ अ मनी। ठीक है, गेटिंग अ डिग्री आउटसाइड फ्रॉम पाकिस्तान, very few privileged people have the ability to afford it, but for the rest of the people, either it's a scholarship, or either it's like just going from 100 to 0 just to कह रहे अपने एक बच्चे को बाहर भेज दो ताकि वो कुछ बन जाए, because that's the only last hope they have. So I'm pretty much sure it's come up with a very big responsibility, and I'm pretty much sure not only personal brand, transparency, way of communication, these are very important in your field. Everything is important, but not in my industry only. I think if anyone is into teaching, banking, fashion, food, anything, they Hmm. should be doing their personal branding. If, for instance, there was a person who is running a restaurant, they must make sure that if they are cooking something, they should be uploading on their pages, Hmm. so that people will know that okay, this is the person who is the chef behind this brand. If the banker is investment bankers, if they are doing personal branding for themselves, then they will be getting more business through that, right? So personal branding as is very important, because आपकी अगर आप, पहली बात तो ये, हमारे पाकिस्तान में जो कंपनीज होती है ना, वो पर्सनल ब्रांडिंग को पसंद नहीं करती। Hmm. अगर कोई कहीं एम्प्लॉयड है ना, तो वो पसंद नहीं करेंगे कि उसका एम्प्लॉय जो है वो अपनी पर्सनल ब्रांडिंग करने लग जाए। तो एम्प्लॉय भी तो माशाल्लाह से हम पाकिस्तान में देखते हैं, सॉरी टू कट यू, लेकिन एम्प्लॉय भी तो दीन और ईमान एक तरफ कर देते हैं। उनकी व्हाट्सएप के स्टेटस उनकी कंपनी के आ रहे होते हैं, उनकी कवर पिक्चर अपने कलर कंपनी के कलर की होती है, एंड द सेकंड दे गॉट ले ऑफ, वो फिर हम उसके बाद बड़े बड़े मैसेजेस देख रहे होते हैं, दिस कंपनी इज दैट एंड दिस कंपनी इज दिस। दिस इज व्हाट आई पर्सनली बिलीव के लोगों को ये समझ में नहीं आता। Company, business, anything can be
vanish or anything can be, you can Yeah, go to another thing. Because I'm pretty much sure you started at आपकी Mentor. In couple of years, you never know, Yamuna will be starting another venture, she will be starting another venture. yeah, So you can only connect one dot with yourself कि नहीं भाई Edmentor is me, me is Edmentor. No, it Yamuna should should be have. it should be one person जिसके बेसिस पे सारी चीजें रिलाई करती हैं. अब ये तो चले बीइंग एन एंटरप्रेन्योर आई कैन डू, बट व्हेन आई वाज एम्प्लॉयड एज वेल, I don't think so. My previous company would like it. So आपको ये challenges आते हैं पर्सनल ब्रांडिंग में जब हम बात करें. हाँ, इंटरप्रेन्योर्स जो हैं या बिजनेस ओनर्स हैं या डायरेक्टर्स हैं कंपनी के, वो अपनी पर्सनल ब्रांडिंग करें, वो ज़रूरी है. Hmm, ठीक है. हाँ, अगर हम ये बात करते हैं कोई यूएस कनाडा में कोई एम्प्लॉयड है और वो अपनी पर्सनल ब्रांडिंग तो वहाँ पे वो वैसे भी करते ही हैं, तो उनको कोई चैलेंजेस नहीं आते. hmm. लेकिन हमारी कंपनी में भाई अगर किसी ने जो है वो अपनी पर्सनल ब्रांडिंग क्या वो कहीं घूमने भी चले जाए तो उसका जो दूसरा कुलीग है वो ही जाके शिकायतें 10 लगा We देगा. are we are living in a society जहाँ पे you don't have your office employees on your WhatsApp, on your Instagram, or on your on your या these personal या तो platforms. फिर आप पर्सनल ब्रांडिंग अगर करनी है ना, तो आप उस जिस कंपनी में काम करते हैं आपका जो नेचर ऑफ वर्क है, आप बिल्कुल उससे हट के ही कुछ कर लें. अपनी Uh, आइडेंटिटी चेंज कर दें, तो फिर okay. कुछ हो सकता है पर्सनल ब्रांडिंग में. तो एम्प्लॉइज के लिए मुझे लगता है फिर भी चैलेंजिंग है ये पर्सनल ब्रांडिंग. लेकिन कोई अगर बिजनेस ओनर है तो वो अपने आप को ब्रांड करे, ताकि आप मिसाल के तौर पे कोई भी चीज खोलें तो पीपल विल नो यू थ्रू योर ब्रांड. Fair enough. Fair enough. I think we have discussed a lot of good pointers, and to be very honest, I was very much admired when I saw your profile, and I really wanted to connect with you because whatever you are doing a very good job. Um, it takes a lot of courage, being a single mother, mashallah, doing everything, making yourself a brand, understanding the business and everything. So thank you so much, Yamuna. Thank you so much for your time. It's my pleasure to have you on this session. I'm pretty much sure a lot of people will have an idea. Okay, okay, fine. This industry work in that way. Just for the audience, if you wanted to connect with Yamuna, write a proper message. She gonna reply. उन्होंने मुझे करा था, I'm pretty much sure वो आपको भी करेंगी. Uh, I can vouch for it. अगर कोई भी कंसल्टेशन के हिसाब से कोई चीज आई है, Edmentor is the best platform. You can go with that. And thank you so much, Yamuna. Thank you so much for your time. It's my pleasure to have you on the session. Thank you so much, Umer, for bringing this collaboration and discussing all the points. And it was a very nice gupshup, I can say. Yeah, thank you, Thank you thank you. for having me on your show.